কেন জি20 আমন্ত্রণ বাংলাদেশকে? ভারতের সঙ্গে শুধুই বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের খেল? বাংলাদেশের আমন্ত্রণ রক্ষায় লাভ কি? দেখুন, ব্রিক্সের সদস্য হয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ, কিন্তু ভারতের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পরেই তুমুল চর্চা। তাহলে কি ভারতের ক্যাপ্টেন্সিতেই এবার জি20 सदस्य होते चलेছে বাংলাদেশ? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। वेस्ट बंगाल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि देखें, बांग्लादेश को ब्रिक्स तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अब जनाब G20 बांग्लादेश को इंडिया ज्वाइन करवा रहा है। ये वेस्ट बंगाल मीडिया ये स्टोरी घड़ रहा है। अच्छा, इसके पीछे हकीकत क्या है, बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है? अब वो कह रहे हैं कि देखें, अब ब्रिक्स के अंदर तो नहीं बांग्लादेश ज्वाइन कर सका, लेकिन अब बांग्लादेश मेंबर बना रहा है G20 का, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। यानी G20, उसमें पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी 20 इकॉनमी, बड़ी बड़े ममालिक जिनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है, मईशत जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी उस लिस्ट में वो कह रहे हैं कि उनको शामिल कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं इंडिया करवा रहा है। इंडिया करवा रहा है G20 के समिट में मुलाकात साइडलाइन पर जो बाइडेन के साथ, मुलाकात हो रही है प्यूटन के साथ, मैक्रोन के साथ, और आपको ये बताएं कि स्पेशल गेस्ट के तौर पर भी सिर्फ साउथ एशिया में सिर्फ शेख हसीना को, यानी बांग्लादेश को बुलाया गया है G20 में। तो वो कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश को इंडिया ने एक गिफ्ट के तौर पे ये चीज़ कर दी, लेकिन अब ब्रिक्स में अगर ज्वाइन नहीं भी करवाया, अब उसके इजाले के तौर पर उसको वो G20 में लेके आ रहे हैं। तो इसी के ऊपर वीडियो है, एक क्लिप है हमारे पास वेस्ट बंगाल मीडिया का, वो क्या बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। কেন জি20 আমন্ত্রণ বাংলাদেশকে? ভারতের সঙ্গে শুধুই বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের খেল? বাংলাদেশের আমন্ত্রণ রক্ষায় লাভ কি? দেখুন, ব্রিক্সের সদস্য হয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ, কিন্তু ভারতের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পরেই তুমুল চর্চা। তাহলে কি ভারতের ক্যাপ্টেন্সিতেই এবার জি20 সদস্য হতে চলেছে বাংলাদেশ? প্রশ্নটা ঘোরাফেরা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। খেয়াল রাখবেন, চলতি বছর G20 সম্মেলনে ভারত আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি দেশকে, যাদের মধ্যে রয়েছে স্পেন, নাইজেরিয়া, ওমান, সিঙ্গাপুর, আরব এমিরেটস। তবে কূটনীতিকদের বক্তব্য, প্রত্যেকটা দেশ আমন্ত্রণ রক্ষা করলেও বাংলাদেশ কিন্তু প্রায়োরিটি লিস্টে থাকছে সবার উপরে, অন্তত আমন্ত্রিতদের মধ্যে। কেন? তাহলে কি বাংলাদেশের জন্য সুবর্ণ সুযোগ করে দিচ্ছে ভারত? তার আগে বলা যাক G20 নিয়ে। বর্তমানে G20 স্ট্যাটাসটা ঠিক কি? ওয়ার্ল্ড জিডিপির প্রায় 85% আসে G20 দেশ থেকে। এছাড়া বিশ্ব বাণিজ্যের 75% রয়েছে এই G20 দেশগুলোর হাতেই। একই সঙ্গে ওয়ার্ল্ড পপুলেশনের 60% এই G20 দেশের মানুষ। সুতরাং বিশ্ব বাণিজ্যকে কন্ট্রোল করার জন্য এবং G20 ছাড়া বিশ্ব বাণিজ্যে কতটা অশনি সংকেত নেমে আসতে পারে সেটা বোঝানোর জন্যই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত G20-র মোটো কি ছিল। সাল 1997, সেই সময় পূর্ব এশিয়ায় দেখা দেয় আর্থিক সংকট, আর এই সংকটের মোকাবিলা করার জন্যই তৈরি হয় G20। এরপর 1999 সালে একটা বৈঠক করেন G7 দেশগুলোর অর্থমন্ত্রী এবং ব্যাংকের গভর্নররা। G7 অর্থাৎ কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান, ইতালি, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জাপান। আর এই দেশগুলোই কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য, পর্যটনের মতো নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা সারে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, আদৌ কি বাংলাদেশ G20-র সদস্য হবে? দিল্লি বলছে ঢাকার ইম্পর্টেন্স কতটা, আর সেই বিষয়টাই তুলে ধরতে চাইছে ভারত, যে কারণে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা চীনের সামনে বিষয়টা তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে নয়াদিল্লি। খেয়াল রাখতে হবে ভারত এবং বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা শুধু কূটনৈতিক স্তরে নয়, দুই দেশের ইকোনমিক ফ্রেন্ডশিপ যথেষ্ট শক্তপোক্ত। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সর্ববৃহৎ যদি বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব কারুর থাকে তাহলে সেটা ভারত এবং বাংলাদেশের। আর বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের। সুতরাং ইকোনমিক্যালি বাংলাদেশ যদি মেজর একটা জাম্প দিতে চায় তাহলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তাকে গভীর থেকে গভীরতর
করতে হবে। আর বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করাটা ভীষণ প্রয়োজন। এখানেই শেষ নয়, রয়েছে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিও, যেটা দারুণভাবে কাজ করছে। ফলে বাংলাদেশের গুরুত্ব ভারতের কাছে কোনো হেলাফেলার বিষয় নয়, বরং যত দিন যাচ্ছে ততই দিল্লির পাশে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের জায়গা। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, वेस्ट बंगाल मीडिया इसी के ऊपर बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ब्रिक्स के अंदर जिस तरह से ववेला मचाया जा रहा है कि बांग्लादेश को जनाब इंडिया ने नहीं ज्वाइन होने दिया और जिसकी वजह से दोनों के दरमियान कुछ रिश्ता भी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वो वेस्ट बंगाल मीडिया ये कह रहा है कि देखें, ब्रिक्स के अंदर तो नहीं करवा सका, लेकिन अब G20 के स्पेशल गेस्ट के तौर पे ऊपर भी बुला रहा है और G20 का मेंबर भी इनको बनाने जा रहे हैं। और G20 का इजलास आपको पता है कि इंडिया में होगा, जिसमें बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ के जो सरबराहान ममलिकत हैं, यानी उनके जो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शिरकत करते हैं इस समिट में। और उसमें उनको कह रहे हैं कि बड़ी ऑनर की बात है, बड़ी रिस्पेक्ट की बात है कि बांग्लादेश को चुना गया है, यानी उसमें उनको बुलाएंगे। अब देखें इसके पीछे बात क्या है, वो ये भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखें, अब अगर बांग्लादेश में अमन होगा, पीस होगा, बांग्लादेश में शांति होगी और बांग्लादेश पावरफुल कंट्री के तौर पर रूप में सामने आएगा, इसका सारे का सारा जो फ़ायदा होगा वो भारत उठाएगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर स्टेट्स भी उसको कहते हैं, वो साथ लिंक है एक किस्म की बांग्लादेश के साथ। अगर बांग्लादेश वहाँ से हाथ उठा लेता है, बांग्लादेश वहाँ से सिक्योरिटी उठा लेता है, बांग्लादेश वहाँ से अपनी तवज्जो और टेंशन ख़त्म कर देता है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर जो अमन है, वो पीस है, या फिर उनके साथ जो उनकी हेल्प है और वो डेवलप्ड वो रीजन बना हुआ है, वो अंडर डेवलप भी हो जाएगा, वहाँ पे पीस भी ख़त्म हो जाएगा, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो भी जन्म लेना शुरू कर देंगे। यही वजह है, यही वजह और कोई नहीं है कि जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि चाइना के पक्ष में जाके बैठ जाए बांग्लादेश। अगर जाके बैठ जाता है, उनके साथ मिल जाता है, तो फिर उसका जो नुकसान है वो भारत को ही उठाना पड़ेगा ना। और इसीलिए भारत कहता है कि आप जो बांग्लादेश के ऊपर इतनी बड़ी सैंक्शंस की बातें ना करें, आप बांग्लादेश के ऊपर पाबंदियां ना लगाएं। कभी आप बहाने बनाकर उनको कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है बांग्लादेश, कभी आप कहते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं ठीक से हो रहे। तो ये इस तरह की वो कह रहे हैं कि आप बातें करने से ज़रा पीछे हटें एक कदम और हालात को ठीक करें, तो उसके बाद फिर कुछ देखा जाएगा। ज़ाहिरी बात है, अगर बांग्लादेश के ऊपर कुछ इस तरह से बातें या कोई सैंक्शंस होंगी तो उसका असर इंडिया तक पहुंचेगा। तो यही वजह है कि अब इंडिया ने एक तो उनके ऊपर जो आरोप था, इल्ज़ाम था, एलिगेशन था कि जनाब आपने हमें ब्रिक्स में ज्वाइनिंग नहीं होने दी, तो अब आप हमें G20 से भी दूर रख रहे हो। खैर, अब भारत ने एक अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि G20 में स्पेशल गेस्ट के तौर पर अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना को वहाँ पर इन्वाइट किया गया है। तो खैर, बांग्लादेशियों के लिए बड़ी प्राउड की मूवमेंट है जी, और बुलाया जा रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर जाके वो अब स्पीच भी करेंगी। देखते हैं जी अब क्या होता है इन फ्यूचर, इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।